Assalamu alaikum everybody. I'm so sorry for keeping you all waiting. Bismillahirrahmanirrahim. टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम काम कर रहे हैं एंड डेफिनेटली दीज काइंड ऑफ थिंग्स डू कम इन वे जहां पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है. लेट मी सी इफ आई एम ऑडिबल. लेट मी जस्ट चेक आउट माय कैमरा एंड एवरीथिंग एंड लेट मी जस्ट give you all a thumbs up. Just bear with me for 2 more minutes and assalamu alaikum and a huge welcome to our today's session. I'm super duper proud of you all to qualify for this session because we are selecting very few people who are going to be part of this. Am I क्या मेरी आवाज एको कर रही है? Can somebody please confirm me here on Zoom? मेरी आवाज एको कर रही है या am I audible? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर खुद को बेसिकली क्या बनाने के लिए आते हैं? मुझे प्लीज कोई एक दफा कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज एको तो नहीं कर रही, बिकॉज आई थिंक I can hear myself echoing, I think, on my phone. Let me just see if I can just put this down. All right, so let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to qualifying for this session. क्योंकि qualifying for this session is not a small session because this is going to be 2025 का biggest project up till now. अभी तक जितने भी हमारे projects launch हुए हैं, ये हमारा इस साल का और आने वाले कुछ सालों में सबसे बड़ा project होने वाला है. Because you guys who are going to be selected tonight, आप लोग pioneers होने वाले हैं जो कि फर्दर इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू जब एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे तो यू आर गोइंग टू बी द पायोनियर्स. यू आर गोइंग टू बी दोज पीपल who will be earning much more than people जो आपके बाद joining देंगे. ठीक है? Let me introduce myself a little so that you guys would know about me. Okay, so my name is Beenish. My name is Beenish Abu Bakr. I am a GLT and diamond manager from Pakistan. And for the very first time, Alhamdulillah, we are going to bring this opportunity for you all registered by government. This is a registered opportunity for all of you, secure to make your income. The Power Eagles was founded 8 years back, and we have launched this year the Winners 360 project. I achieved my manager in just 4 months of a time. In just 4 months of a time, मैंने अपना manager position achieve किया था. So at the moment, I'm working on what position? I'm working on the GLT position, on the diamond manager position, the very first GLT, the very first diamond manager from Pakistan and in the Middle East as well. Earning potential अगर बताऊं मैं आपको as a diamond manager तो it is more than 20 lakh. This is not to impress anyone, it is to impress upon you कि ये potential income है यहाँ पर. अगर आप अपनी opportunity join कर लेते हो, अगर आप select हो जाते हो further तो इंशाल्लाह you can change your life. So what do? We help by becoming an entrepreneurs first, and then we try to help others. These days, like I have interviewed few of people, very selected few of people. आप जानते हैं कि like when it comes to this opportunity, we keep on getting applications of different people from different background. आज सुबह की बात है,
I was speaking to a lady, and she wanted to do something for people. She was, according to her, she was connected to many big entities in Pakistan, etc., etc., etc. But I was a little surprised, thinking, "Ke mashallah, tabarakallah, when we are part of a digital platform, we are much powerful than people who are actually having contacts with the bigger entities." और ये power आपको कहाँ से मिलती है? ये पावर आपको मिलती है जब आप एक रजिस्टर्ड ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहे होते हो. सो माई जर्नी, व्हाई डिड आई चूज दिस पाथ? मैंने ये पाथ क्यों चूज किया था? नो जॉब अपॉर्चुनिटीज, इवन इफ अगर आपकी आपके आपके even if you have studied from one of the best universities at the moment, आप इस चीज पे अग्री करोगे कि we don't have a job opportunities for the people. और अगर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल भी हैं तो ये उन लोगों के पास अवेलेबल जिनके पास कोई सोर्स है जिसके थ्रू वो अपनी जो है जॉब को सिक्योर कर सकते हैं या एक्वायर कर सकते हैं. मेरे पास भी ऑफ कोर्स जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी. आपको पता है, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, हम मास्टर्स कर रहे होते हैं, हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो हमें बड़े वो कहते हैं ना, ख्वाब दिखाए जा रहे होते हैं कि दैट्स इट, बस पढ़ो लिखो, उसके बाद योर लाइफ इज सेट. बट एक्चुअली योर रियल लाइफ स्टार्ट्स व्हेन आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी होती है और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करते हो. तो आई हैड नो जॉब, आई हैड नो प्रॉपर इनकम, इवन दो मैंने एक पॉइंट पर जाकर अपना दुबई में स्टोर भी सेटअप किया. और जब मैंने उस स्टोर को सेटअप किया और उस पर इतना पैसा लगाया, ऐसा नहीं कि यू डोंट मेक मनी, यू डू मेक मनी, बट इन द एंड क्या होता है कि जब आप कोई भी ट्रेडिशनल काम कर रहे होते हैं तो आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रहे, आप ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो और आप पुराने तरीके से अपने आप को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हो. आज के जमाने में मुझे पर्सनली अपनी रिसर्च के हिसाब से और अपने सामने जो एग्जांपल्स हैं उसके हिसाब से ये चीज समझ में आई है कि जो ट्रेंड को फॉलो करता है वही कामयाब है. जिस तरह का भी ट्रेंड जिस भी एरा में चल रहा होता है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे. अगर आप उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, नो मैटर व्हाट यू डू, आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता. तो उसी तरीके से खैर, आई ran माई स्टोर फॉर फ्यू इयर्स, आई डिड शोज, मैंने काफी टीवी शोज के ऊपर भी बहुत कुछ, आई कवर्ड सो मेनी थिंग्स. बट इन द एंड ऑफ द डे क्या होता था कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा तो लेती थी, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा मेरी मेरी पॉकेट से निकल भी जाता था, तो इन द एंड ऑफ द डे मेरे पास बचता ओरिजिनली कुछ भी नहीं था. और ये आप इस चीज पे अग्री करोगे, राइट? अगर आपकी फैमिली में कोई भी लोग इस वक्त, अगर आपको लगता है उनको देख के बजाहिर कि वो एक बड़ी सिक्योर लाइफ गुजार रहे हैं, और अल्लाह ना करे कि अचानक उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो फौरन से उसको फिक्स करने की ताकत रखते हैं, तो वो वही लोग हैं जो इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं. वो लोग इस चीज पे कभी भी रेडी नहीं होंगे, एक एवरेज इंसान कभी भी रेडी नहीं होगा इस चीज के लिए कि गॉड फॉरबिड समथिंग happens and all of a sudden you'll be able to fix it. So my journey started in 2017. I started off by qualifying for this opportunity. Alhamdulillah, I was chosen. और मैंने फिर जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया और इनिशियली अपनी लर्निंग, मैं अपने लर्निंग स्पेस पे आई और मैंने ये सीखा और समझा कि अब से पहले जो मैं कर रही थी वो मैं अपना टाइम ही जो है वो वेस्ट कर रही थी. और इस चीज पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अग्री करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग एग्री करेंगे जो इस बिजनेस से अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है वो अपने हिसाब से अपने आप को टाइम के हिसाब से ट्रेंड के साथ चेंज कर लेता है. अदरवाइज देर इज नो अदर ऑप्शन. सो व्हेन चेंज इज नेसेसरी, नॉट टू चेंज इज डिस्ट्रक्टिव. ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात है कि देखो, जो ट्रेंड के साथ चेंज नहीं होता उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो सकता. ठीक है? लेट मी नो कि आपके पेरेंट्स के पास कौन सा फोन था. कमेंट्स में मुझे बताइए. जो लोग जूम पे हैं इस वक्त वो मुझे बताएं कि आप के पेरेंट्स जो हैं वो कौन सा फोन यूज करते थे. या चले हम पीछे बैक चले जाते हैं, 2010 में कौन सा ऐसा फोन था जो यूज किया जाता था?
नोकिया, ओके। देयर वाज अ वेरी शॉर्ट टाइम जब, यस यू आर राइट, बहुत थोड़े टाइम के लिए देयर वाज ब्लैकबेरी, यू आर राइट। लेकिन वो सारे फोन्स अभी इस वक्त इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं उस लेवल पे जब उस वक्त यूज किए जाते थे। तो देखो, ट्रेंड के साथ चेंज नहीं होता, उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेट अब जैसे फॉर एग्जांपल, आज मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप नोकिया यूज करना चाहोगे, आप, या आपका ड्रीम फोन क्या है, कौन सा है? तो ठीक है, चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। यूट्यूब पे टाइप नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप जूम पे टाइप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सैमसंग हो गया, फाइन। आईफोन, आईफोन, आईफोन 16, ओके। देखिए, ट्रेंड के हिसाब से आपको पता है कि क्या बेहतर है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि आप आज की जनरेशन हो और आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि इवन आप किसी छोटे बच्चे को भी इस वक्त कहोगे ना, 3 साल के बच्चे के सामने भी आप अगर 2-3 फोन रख दो, नोकिया रख दो, पुराने कोई फोन उठा के रख दो, दैट बच्चा विल ऑल्सो पिक अप आईफोन, क्योंकि उसको भी पता है कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, या सैमसंग को चूज करेगा। तो 3 साल के बच्चे को भी ये पता है कि व्हाट इज बेटर और मुझे अपने लिए क्या चूज करना है। लेकिन अक्सर जो लोग बड़े हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हम जैसे मेच्योर लोग हैं, वो अक्सर चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं। अब देखते हैं कि इतना बड़ा ब्रांड जो 2010 में उसको कोई बीट नहीं कर सकता था, वो फेल कैसे हुआ है, ठीक है। रिमेंबर कि इट वाज अ ब्रांड, अ बिग ब्रांड, नोकिया, जो खुद को ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं कर सका, उसने अपने आप को ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं किया था, तो वो पीछे रह गए। हम इस चीज को अग्री करते हैं, हम इस चीज को मानते हैं कि दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रुथ। अगर ये एंड्रॉयड फोन के फीचर्स में तब्दील हो जाता उस वक्त जब ऑफर हुआ था, जब जिस वक्त गूगल का ट्रेंड आया था, तो अभी उसकी पोजीशन वो नहीं होती जो इस वक्त है। सो जो ट्रेंड के साथ चेंज नहीं होता वो दुनिया में पीछे रह जाता है, वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वही लोग होते हैं जो ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। जब वाटर रेवोल्यूशन आया था तो लोगों ने वाटर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जब इंटरनेट आया, लोगों ने आईटी बिजनेसेस के अंदर और ज्यादा रिसर्च और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और इंटरनेट की कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। चाहे आप इस वक्त कितनी भी किसी भी बड़ी कंपनी का नाम उठा के देख लें, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनिशियल जब ट्रेंड आया उसी वक्त उसका पार्ट बन गए थे। उसी तरीके से आपके सामने ये नोकिया की मिसाल मैंने आपको दी है कि नोकिया की जब डाउनफॉल आई थी, जब नोकिया की डाउनफॉल आई थी, तो नोकिया डिडंट एक्सेप्ट गूगल, ठीक है। और मतलब उसकी लॉन्च हुई, गूगल की लॉन्च हुई, और व्हाट डिड एप्पल डू? एप्पल ने उसके साथ हाथ मिलाया, साथ साथ जो अपग्रेडेशन आपकी गूगल पे आती जाती थी, वही अपग्रेडेशन जो है आप दे वही चीजें जो आप उस पे देखते थे, वो चीजें अपग्रेड होती जा रही थी आपके एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही। मतलब दे बोथ वर ग्रोइंग टुगेदर, वो इकट्ठे साथ साथ ग्रो कर रहे थे। इवन इफ इस वक्त अगर हम कहें ना कि आईफोन बहुत महंगा फोन है, एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं जी, उसको पीटीसी अप्रूव करवाना पड़ता है और ये करना पड़ता है, लेकिन स्टिल एवरीबडी वांट्स टू ओन दैट प्रोडक्ट, बिकॉज उससे जिंदगी आसान है, आपको हर चीज उसके अंदर बेहतरीन मिलती है, हर चीज। और प्लस इन द एंड ऑफ द डे इट इज अ ट्रेंड एंड एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ अ ट्रेंड। तो इस वक्त ट्रेंड क्या है, मुझे कमेंट्स में बताएं। क्योंकि अगले 12 साल तक कॉलेजेस जो इस वक्त स्टडीज और एजुकेशन करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जो इस वक्त डिग्रीज करवा रहे हैं, अगले 12 साल में कोई उनको नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला? अगले 12 साल में आपको बीबीए नहीं मिलेगा, अगले 12 साल में आपको एमफिल नहीं मिलेगा, अगले 12 साल में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? बिकॉज यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट आप पीछे जाकर ग्रोथ नहीं कर सकते, आप आगे बढ़ के ग्रोथ कर सकते हैं। तो आने वाली यूनिवर्सिटीज आपको क्या सिखाएंगी? स्किल सिखाएंगी जो हम आपको 12 साल पहले सिखा रहे हैं। क्योंकि आज ही मैं जब एक मेंबर से बात कर रही थी जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, तो वो यही कह रही थी मुझे कि देखें, मैं इस वक्त एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशन डिग्री की होल्डर हूँ, क्लिनिकल डाइटिशियन बन रही हूँ, इवन इंटर्नशिप कर रही हूँ, लेकिन इनकम सोर्स मेरा कोई भी नहीं है। और मैं समझती हूँ कि मैं अपने आप को ऑनलाइन
अपने आप को लेवल अप करना चाहती हूँ, मैं काम सीखना चाहती हूँ, मैं स्किल सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी जो एजुकेशन है उसको लेवरेज कर सकूं। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको ऑनलाइन स्ट्रक्चर की समझ आएगी, आपको समझ आएगा कि बेसिकली चाहे आप फेस मार्केटिंग की बात करें या फेसलेस मार्केटिंग की बात करें, वो चीजें आपको कौन सिखा रहा है? वो आपको पावर ईगल्स ही सिखा रहा है। व्हाट इज पावर ईगल्स? वी आर द नंबर वन बिजनेस एट द मोमेंट इन पाकिस्तान। हमारे को हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज में कि यंगेस्ट मिलियनेयर पाकिस्तान में किस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने बनाए हैं। दिस इज द ओनली बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप उठाकर देखें, मैं किसी को भी चैलेंज इस वक्त करने के लिए तैयार हूं कि कोई भी बिजनेस इस वक्त सामने आए और मुझे ये बताए कि 18 साल से लेकर इवन 40 इयर्स तक कोई उनकी टीम में या उनके बिजनेस में ज्वाइन हुआ हो और उसने 1 साल के अंदर 50 लाख, 1 करोड़ कमा लिया हो। 50 लाख या 1 करोड़ कमा लिया हो, इसके बीच की इनकम उसने कमाई हो। बट हमारे पास प्रूफ्स हैं, हमारे पास इनकम प्रूफ्स हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं। सो दिस इज वाई, बिकॉज वी आर वॉकिंग अहेड ऑफ अ टाइम। हम टाइम से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज समझ चुके हैं और ये चीज सिखा भी रहे हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। सो जॉब वर्सेस बिजनेस को अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त what are the differences that we have when it comes to the job opportunities and the business opportunities? I'm not talking about self-employed. सेल्फ एम्प्लॉयड की बात नहीं मैं कह रही। अब सेल्फ एम्प्लॉयड किसको कहते हैं कि लाइक लेट्स सपोज आई एम अ डॉक्टर और आई ओपन माय क्लिनिक, और जब तक मैं एक्टिवली काम कर रही हूँ उतनी देर तक मुझे इनकम आएगी। आई डोंट हैव एनी पैसिव इनकम, कि या कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है मेरे पास जिसके थ्रू मेरे पास अर्निंग जनरेट होगी। तो जॉब और बिजनेस को आज स्टडी करेंगे। सो यू कांट डिसाइड योर जॉब एंड अर्निंग रिवॉर्ड, बिकॉज जॉब में आप अपना काम नहीं चूज कर सकते। आपको कोई और है जो बताता है कि ये काम आपको करना है, ये ही आप करोगे, और उस हिसाब से यही आपके वर्किंग आवर्स होंगे। आपने इतने से इतने बजे तक काम करना है, अदरवाइज वी विल नॉट पे यू। और योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन योर बॉस। अगर आपका बॉस हैप्पी, आपकी सक्सेस होगी। अगर आपका बॉस आपसे हैप्पी नहीं है तो आपकी कोई सक्सेस। लेकिन यहाँ अगर आपका अपलाइन आपसे हैप्पी नहीं भी है और आप अपनी अपलाइन से ज्यादा पोटेंशियल रखते हो, तो आप अपनी अपलाइन से भी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। यानी कि आज जो बंदा ज्वाइन कर रहा है हो सकता है कि वो हमसे भी ऊपर चला जाए। सो यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर हाउस वर्क, योर ऑफिस वर्क, बिकॉज दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर बॉस। You get very small chance to learn and improve because growth margin बहुत कम होता है। जब आपको एक रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, जहां पर आपको डिक्टेट किया जा रहा होता है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, वहां पर आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप ग्रोथ वहीं पे कर पाते हो जहां पर आपके पास डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है। सो यू डिसाइड योर अनलिमिटेड अर्निंग। यहाँ पर अनकैप्ड इनकम है, जितना जो काम करता है। जैसे कल एक इंटरव्यू में आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय टीम मेंबर, and she told me that she has converted about 20 deals this month. अब 20 deals को अगर आप convert करते हो तो वो अर्निंग पोटेंशियल एक एवरेज हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी हु हैज कम फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड कि भाई बहुत ही ज्यादा कोई नॉलेज रखती हो या। और इंशाल्लाह अपकमिंग इंटरव्यूज में आपको उनका इंटरव्यूज हम अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे। अगर आपकी ज्वाइनिंग इंशाल्लाह हो जाती है तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। 5.5 लाख रुपए एक महीने में एक न्यू स्टार्टर जब कमा रहा है, तो ये शो करता है कि अनकैप्ड इनकम है। यहाँ पर कोई कैप नहीं है या कोई जॉब की तरह आपकी एक जो है सैलरी बेस नहीं है कि आप इतने ही पैसे कमाओगे। यू कैन चूज योर वर्किंग आवर्स। 2 घंटे काम करना है, 4-5 घंटे, इट्स ऑन यू। जितना आप उड़ना चाहोगे, जितना आप ग्रो करना चाहोगे, उतनी आप अपनी एफर्ट लगाओगे। योर ग्रोथ डिपेंड्स एंड इट इज faster than any job opportunity. I'm not against jobs. You can keep on doing the job that you like. Maybe that is one of your hobby that keeps you active, or maybe you like doing it. अगर आपको वेज कम भी मिल रहा है, लेकिन on alongside that do something that is business। क्योंकि आपकी जॉब की किस वक्त वो जॉब चली जाएगी आपके हाथ से, कब आपकी एक रिप्लेसमेंट हो जाएगी किसी और के साथ, आपको उसका कोई श्योरिटी और कोई गारंटी नहीं है। सो वापस जी, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक जॉब ओरिएंटेड बंदा है, वो सारी जिंदगी उसने जॉब की है और गॉड फॉरबिड वो उसकी डेथ हो जाती है,
उसका बच्चा दोबारा जीरो से स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर एक इंसान जिसने बिजनेस ग्रो किया होता है, जहां उसने अपने बिजनेस को छोड़ा होता है, वहां से ही उसका अपना बच्चा उस चीज को पिकअप कर सकता है, वहां से वो स्टार्ट ले सकता है। यानी कि वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा, एटलीस्ट मिनिमम भी आप कह लो तो वो 10 से स्टार्ट करेगा, खाली हाथ स्टार्ट नहीं करेगा किसी चीज को कि दोबारा से जीरो से द चाइल्ड विल स्टार्ट। सो यू चूज द वर्क यू लाइक टू डू। अब हमारे पास बहुत सारे वेज ऑफ अर्निंग है, और इट्स ऑन यू, आपको किस जो है इनकम पोटेंशियल पे आपको काम करना है, किस कैटेगरी पे आपको काम करना है। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली बिकॉज वी कीप ऑन अपग्रेडिंग आवर ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम ये नहीं है कि आज अगर हम अपनी किताबों को देखें तो वही 30 साल 40 साल पुरानी किताबें आप वापस रिपीटेशन पे हर जनरेशन पढ़ती आ रही है। तो इस वजह से आपका वो लेवल, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, जो चीजें आप लोगों ने किताबों से नहीं सीखी, यूनिवर्सिटी से नहीं सीखी, वो आप सोशल मीडिया के साथ साथ थ्रू सीख रहे हो। और यही बात है कि अगर आप उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, उससे सीख रहे हो, तो उससे कमाना भी सीखो। सो हमारा गोल यही है। हमेशा याद रखें एक चीज को कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर हम इन बिजनेसेस को देखें, अगर हम मैकडोनल्ड्स को देखें, उबर को देखें, और डिफरेंट ब्रांड्स लाइक केएफसी को देखें, तो ये क्या चीज हमें बताते हैं, ये क्या जो इसका ओनर है, जो इस आइडिया को लेकर आया है, क्या वो आपको कभी नजर आया है, या उसने कभी आपके पास आके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उबर की बात करें, आप जब उबर लॉन्च नहीं हुआ था, कितना मुश्किल था कि अगर आप बाहर निकले हो, आपको जाना है, पहले आपने जी प्राइस करनी है कि रिक्शा वाले से या फिर टैक्सी वाले से या किसी से भी, कि भाई इतने में आप लेकर जाओगे, इतने में आप करोगे। अब एवरीथिंग इज ऑन योर हैंड इन योर फोन। अगर आज से तकरीबन अब कुछ अरसे के बाद, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसी तरीके से बताऊं कि जब आप ट्रेंड की बात करते हो, जब आप अपग्रेड करने की बात करते हो, और जब आप आइडिया की बात करते हो, और आप नेटवर्क की बात करते हो, अगर आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले कोई पर्सन आपके अम्मी अब्बू के पास आता और आके कहता कि जो है ना, कुछ टाइम के बाद मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ जहां पर हम कार्ड कैश दिए बगैर हम फोन से पेमेंट करेंगे, या फिर हम कार्ड से पेमेंट करेंगे। यू नो, जैसे आजकल आप अपने फोन से गूगल पे के थ्रू, एप्पल पे के थ्रू और डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू पेमेंट करते हो। और जिस तरीके से अगर एक पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इजी पैसा जैसी कोई चीज अगर कोई पहले बात करता 20 साल पहले कि जी इजी पैसा जैसी कोई चीज होने वाली है, तो लोग उसको पागल कहते हैं। उसी तरीके से जब ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात आती है, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या तुम फॉलो कर रहे हो, ये क्या तुम करने लगे हो, ये तो तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज करेगा, पुराने तरीके से चलने की कोशिश करो, जॉब पे फोकस करो, या अपने मिलियंस लगा के, करोड़ों लगा के अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, तुम्हें वहां से फायदा मिलेगा। कोई मुजाहिदा नहीं, कोई बुराई नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर आप स्मार्ट बिजनेस को अपनाएंगे नहीं, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं और आप अपनी नेटवर्क बिल्डिंग नहीं स्टार्ट करेंगे इस नेटवर्किंग के थ्रू, स्मार्ट बिजनेस के थ्रू, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, और उस चीज को फिर आप आज से 10 या 15 साल के बाद चेंज नहीं कर सकोगे। ठीक है। सो योर फैमिली विल बी फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट आपके एंसेस्टर्स फॉलो करते आ रहे थे, और आपकी जनरेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बिकॉज जब उबर लॉन्च हुई तो दे हायर्ड ड्राइवर्स, गाड़ियां भी उन्होंने अपनी नहीं दी, गाड़ियां भी ड्राइवर की अपनी होती है। जब उबर ड्राइविंग की बात करते हो, गाड़ी हर चीज पेट्रोल, सिर्फ उन्होंने उनके साथ अपना एक मार्जिन फिक्स किया होता है कि इतनी उनको पे करना है। जो ओनर है, क्योंकि दे आर द वंस हु आर रनिंग द सॉफ्टवेयर, दे आर रनिंग द एप्लीकेशन फॉर इट। और जब आप फॉरएवर की बात करते हो, जब आप पावर ईगल्स की बात करते हो, इट्स एन एप्लीकेशन। It is your FLP 360, it is your winners 360 that you are going to work through. तो याद रखें इस बात को कि आपको अपने नेटवर्क बिल्डिंग कैसे की जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू स्मार्ट वर्क करके किस तरह से ये बिल्ड किया जाता है, और किस तरह से पैसिव इनकम जनरेट की जाती है कि एक दफा आप एक आइडिया का जब पार्ट बन जाते हो,
you can now build your network, and your network is going to work with you, and you will start making money through that as well. Chahe initially you start making 30,000, 50,000, and slowly you reach to 10 to 20 lakh, but you are in a safe zone. लेकिन कोई इनकम आपको मैं बताऊं यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि यू कैन ओनली अर्न दिस मच और यू कैन ओनली अर्न दैट मच. यू कैन अर्न एज मच एज यू आर गोइंग टू वर्क फॉर इट. अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखें तो ओरिजिनली अगर आप देखो हम 2000 सॉरी 1991 की अगर मैं बात करूं, 1991 से लेके 2023 का अगर आप ग्राफ देखोगे ऑनलाइन जाके, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारा 0.5% से पाकिस्तान में इस वक्त पहुंच चुका है 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट. 2024 की बात कर रही हूँ. फिर सोचें कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो खत्म हुआ ही नहीं, वो तो बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या हम बेवकूफ लोग हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और हम फाइनेंशियल नॉलेज लेना भी नहीं चाहते और हम ट्रेंड फॉलो भी नहीं करना चाहते, बिकॉज हमें कोई ऐसा इंसान ये बोल रहा है जो खुद कुछ नहीं कमाता, जिसने खुद कभी भी बिजनेस नहीं किया, और वो हमें ये राय दे रहा है कि तुम ये मत करना या नहीं करना. या एक फेलियर जिसने अगर लेट सपोज कुछ स्टार्ट किया भी था और उसने उसको अपना 100% नहीं दिया, और वो आके आपको एडवाइस करे, सजेशंस दे कि भाई नहीं तुम तो जो है वो जॉब पे फोकस करो, नहीं तुम क्या ये तुम्हें पक्के पका, मतलब दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू विल लिसन एंड हियर फ्रॉम पीपल. ठीक है. फिर पूछा जाता है कि जी यंगस्टर्स में डिप्रेशन क्यों है, यंगस्टर्स के अंदर इतनी समझ क्यों नहीं है. पता नहीं, हमारे जमाने में तो लोग बड़े समझदार होते थे, आज के जमाने का यंगस्टर जो है वो इतना बेवकूफ क्यों है? क्योंकि जी हर चीज आपने कॉम्पैक्ट कर दी हर एक बंदे के लिए. मैं आपको बताऊं, आई एम अ पर्सन हु रीड्स अ लॉट, और जब मैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखती हूँ ऑनलाइन, आई रिस्पेक्ट दैट पार्ट कि वो जो एक किताब आपको तकरीबन महीना लग जाता था खत्म करते हुए, 15 दिन लग जाते थे, चलो हफ्ता लग जाता था, वो किताब आप आज के टाइम पे विद इन 5 to 6 आवर्स कंप्लीट कर लेते हो. कैसे पॉसिबल है? ऑडियो फॉर्म में आपको किताबें सुनने का मौका मिल जाता है. सिर्फ एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट टेकिंग द एक्सपीरियंस एंड देन अप्लाइंग इनटू योर बिजनेस. सो जब हमने वहां अपनी सोच अल्हम्दुलिल्लाह चेंज कर ली, बेटरमेंट पे ले आए, तो इंशाल्लाह करीम आई होप के अगर हमारा खैर पाकिस्तान के लिए आई हैव हाई होप्स कि आई होप सो कि इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर इन चीज़ों को हमारे भी कंट्री में अप्लाई किया जाएगा, जैसे दूसरे ममालिक में इन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है एजुकेशन के लिहाज से, कि इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ ही साथ स्किल्स भी सिखाएं. अगर फॉर एग्जांपल आप ये बता रहे हैं कि ये कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड के ऊपर ये सब कीज लगे हुए हैं, ये नंबर का की है, ये वाले आप कोडिंग में आप ये वाले जो हैं इस तरीके से मिला के आप नंबर्स को चल सकते हो, आप कीज को चल सकते हो, प्रैक्टिकली भी करना उसको जरूरी है. जब हमारे स्कूल्स में आई रिमेम्बर जब लैब्स आए थे, कंप्यूटर लैब्स आए थे, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स एंड दैट इज हाउ वी लर्नड यूजिंग अ कंप्यूटर. राइट, जब तक एक चीज प्रैक्टिकली की नहीं जाती वो स्किल आपके अंदर डेवलप नहीं होती. तो खाली किताबें पढ़ने से भी और डिग्रीज हासिल करने से, सर्टिफिकेट हासिल करने से, बगैर किसी स्किल को सीखे आप कुछ नहीं कर सकते. इवन इफ अगर आप इसको ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक कोई आपसे प्रैक्टिकल काम नहीं करवाएगा उतनी देर तक आप अपनी स्किल को पॉलिश नहीं कर सकोगे, आप उसके थ्रू अर्निंग जनरेट नहीं कर सकोगे. ये business opportunity was launched in 1978 by a man called Rex Mon, और ये American businessman थे, और he is the founder of Forever Living Products. This is a multi-level marketing company which is registered in more than 170 countries worldwide including Pakistan. ये इसके बी हाइव प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा प्रोडक्ट्स हैं, और ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है. लेकिन जो मेन प्रोडक्ट्स इसके क्या हैं, एलो बेस्ड है, एलोवेरा बेस्ड है, और बी के प्रोडक्ट्स हैं. और आपको पता है कि ये दो गोल्ड इंग्रेडिएंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ. इफ यू कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड वर्थ ऑफ दीज टू इंग्रेडिएंट्स व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बॉडी. इम्यूनिटी, cleansing, immunity, cleansing. So this is what you need. As I told you, okay, this is our main head office. It was, the scheme
अब ये मतलब ये अपने फॉर्म में आया 1978 में। दिस इज द मेन हेड ऑफिस इन एरिजोना फिनिक्स, और मैं इसको पर्सनली विजिट कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज सुपर प्राउड ऑफ इट। और ये कब पॉसिबल हुआ था? ये पॉसिबल हुआ था जब मैंने अपनी ट्रिप क्वालिफाई की थी। और जब मैंने ट्रिप क्वालिफाई की थी और जब मैं इसमें गई, और देयर वाज अ रूम जहां पर जीएलटीज के बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी हुई थी एक ऑफिस के अंदर। और वहां पर मैंने एक ड्रीम देखा था, और एक कॉरिडोर है जहां पर पूरी कंट्रीज, जितनी 170 कंट्रीज के फ्लैग्स हैं वहां पर लगे हुए हैं। तो वहां से ही आई टुक अ ड्रीम कि इंशाल्लाह करीम एक दिन हमारे मुल्क का फ्लैग भी यहाँ पर होगा, और इंशाल्लाह करीम यहाँ पर हमारा मेरी पिक्चर भी आनी चाहिए एक दिन। तो यू टेक अ ड्रीम एंड देन यू मेक इट पॉसिबल, विच हैज बीन पॉसिबल नाउ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को विजिट करोगे तो आप देखोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाके, कि वो चीज पॉसिबल हो गई है। अब मेरी फोटो वहां पर मौजूद है। और ये आपके लिए भी एक प्राइड की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर नाउ पार्ट ऑफ समथिंग which has already changed life for many Pakistanis, and you can also change your life through it. ऑलमोस्ट 4000 ऑफिसेज हैं। मैंने जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की और मैंने देखा कि ओ माय गॉड, ये एक ऐसा बिजनेस है अगर मेरी कोई फ्रेंड इस वक्त किसी भी मुल्क में रह रही है, या किसी से भी मैं मिलती हूँ, लाइक उस मुल्क के अंदर इसका हेड ऑफिस मौजूद है। अगर आप यूएसए की बात करें, आप कनाडा की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप यूके की बात करें, आप जापान की बात करें, आप सिंगापुर की बात करें, मतलब जिस भी कंट्री, स्पेन की बात करें, तो वहां पर इसका हेड ऑफिस मौजूद है। और यहाँ यहाँ से इसकी स्टैंडिंग पता चलती है, स्ट्रेंथ पता चलती है कि अगर 4000 ऑफिसेज हैं इस बिजनेस के, और अगर मिलियंस ऑफ एफपीयूज इसका ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस ओनर्स इसका पार्ट है, अपनी जिंदगी चेंज कर रहे हैं, तो हमें किस चीज का इंतजार है? व्हाई, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हम किन लोगों की बातें सुन के बैठे हुए हैं? The turnover of the company is around $4 billion. आप टर्नओवर अगर आप देखें इस कंपनी का, ग्रोथ मार्जिन देखें, तो आप कोई भी सिचुएशन आई है, रिसेशन आया है, कोविड आया है, लेकिन इसका ग्राफ कभी भी किसी भी टाइम पे नीचे नहीं गया। इट हैज ऑलवेज राइज्ड। सो यू आर जॉइनिंग समथिंग विच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग, और आपका फ्यूचर इंशाल्लाह करीम सिक्योर है। थोड़ा सा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को देख लेते हैं। व्हाट इज एन एक्टिव इनकम? एक्टिव इनकम वो होती है जिसको आपको करते रहना है, ऑफ कोर्स। क्योंकि मैं एक जबरदस्त पर्सनालिटी की जो है वो सुन रही थी इंटरव्यू और पॉडकास्ट था उनका, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्टिव इनकम इज समथिंग दैट मेक्स यू रिच, बट पैसिव इनकम इज समथिंग दैट कीप्स यू रिच। ओके, एक्टिव इनकम इज समथिंग दैट विल मेक यू, बिकॉज एक्टिवली जब आप काम करोगे इस बिजनेस के थ्रू, आप एक अर्निंग जनरेट करोगे, और जो आपकी पैसिव इनकम आएगी वो आपको रिच रहने में जो है वो रखेगी। अब अगर आप जॉब की एग्जांपल ले लो, ट्रेडिशनल बिजनेस की एग्जांपल ले लो, उसमें पैसिव इनकम नहीं होती। तो अगर आप कुछ अरसे के लिए 6 लाख की सैलरी कमा भी रहे हो, 5 लाख की सैलरी कमा भी रहे हो, जब आपकी वो जॉब चली जाएगी, यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ रिच। पैसिव इनकम वो होती है कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे, आपकी एक नेटवर्क जनरेटेड है, नेटवर्क आपका काम कर रहा है, तो आपको चाहे कुछ भी मार्जिन मिल रहा है, दैट हेल्प्स यू विद द स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ इन लाइफ। यू वर्क, यू मेक मनी एक्टिव में। पैसिव में क्या होता है कि मनी वर्क्स फॉर यू, इन्वेस्टर्स हो गए, बिजनेस ओनर्स हो गए, पैसा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पॉइंट आया, लेट्स से, अब जैसे many of our team members are now investing into their life, अपनी लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो स्मार्टली क्या होता है कि अब लेट सपोज आपने एक साल में 50 लाख की अर्निंग कर ली। ओके, आपके खर्चे भी हैं जाहिर सी। अगर आप 20 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी चीज में, लेट से आपने कोई प्लॉट परचेज कर लिया, अगले 6 से 7 साल में अगर आप उसको सेल आउट कर देते हो, तो यू विल मेक अ वेरी गुड मार्जिन आउट ऑफ इट, राइट? So that is how your active income was worked through the passive income, and now it is now generating income for you in a profit, जिसको आप कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी अपनी अर्निंग जनरेट कर रहे हो। इन्वॉल्वमेंट नीडेड होती है। अगर आप एक दिन भी छुट्टी कर लोगे, आपकी जॉब आपके मतलब एक तरह से आपकी एक
इमेज खराब हो जाती है। अगर आपने लेट से आपको जाहिर सी बात है, यहाँ यूएई में तो अगर आप बीमार हो जाओ तो आपको डेफिनेटली मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है अपने ऑफिस में दिखाने के लिए कि भाई मैं बीमार था तो इस वजह से मैं नहीं आ सका। और जाहिर सी बात है कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेने आप किसी क्लिनिक पे भी जाते हो तो यू हैव टू पे मनी टू देम एज वेल, राइट। सो आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। यहाँ पर आपकी मर्जी, लेट्स से इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर आपने एक आध दिन काम नहीं भी किया तो आपकी पोजीशन आपके हाथ से कोई नहीं लेके जाता। अगर आपने इवन महीना काम नहीं किया तो आपकी पोजीशन कहीं पे भी नहीं जाती। सो फोर्स्ड स्केड्यूल होता है, आपका स्केड्यूल जो है कोई और डिसाइड कर रहा होता है, और यहाँ पर कोई स्केड्यूल नहीं है। स्केड्यूल डिसाइडर आप खुद होते हो, आप अपना खुद ही 7 डे प्लानिंग करते हो, आप खुद ही अपनी टाइम प्लानिंग करते हो, जो हम आपको डेफिनेटली सिखाते हैं। और लेस रिस्क आपको होता है, लेस रिवॉर्ड होता है, जाहिर सी बात है जॉब की अगर हम बात करें, और उसी तरीके से मोर रिस्क बिग रिवॉर्ड होता है। लेकिन यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन बिजनेस देयर इज नो रिस्क, दैट इज स्ट्रेट बिकॉज आप जो अपनी यहाँ पर आप स्टार्टअप लगा रहे होते हो, उस स्टार्टअप के अगेंस्ट ही आपको जो है वो प्रोडक्ट्स भी मिल रहे होते हैं। तो यानी कि आप जो है आपका कोई रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट नीडेड ऑफ कोर्स एक्टिव इनकम में, लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो ये एक झूठ बात मैं समझती हूँ जॉब से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं जॉब्स को भी एक्वायर करने के लिए। आपकी यहाँ पे एक छोटी सी ऑफ कोर्स पेमेंट रिक्वायर्ड होती है जो आप लगाते हो, एंड देन यू आर एबल टू बी पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। जस्ट गिव मी 1 minute। ओके, सो आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको छोटी सी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। वो भी हमारी सिलेक्शन के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन हमारे बिजनेस का पार्ट बन सकता है। ऑफ कोर्स आपकी कैपेबिलिटी पे देखा जाता है। आपकी स्टेडी इनकम होती है, मतलब कि लगातार आती है, छोटी सी अमाउंट आ रही होती है जब आप एक्टिव इनकम की बात करते हो। जब आप जाहिर सी बात है पैसिव की बात करते हो तो यहाँ पर हम बात करते हैं कैश फ्लो की। यानी कि आपके पास अब कैश फ्लो आ रहा है, और जिसके पास कैश फ्लो नहीं आ रहा वो रिच नहीं हो सकता। So Forever gives you an opportunity to earn a passive income. Okay, before I take a leave, you guys can follow us on our social media platforms, and I have few speakers here जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहूंगी। So Forever gives you an opportunity to earn a passive income. Okay, before I take a leave, you guys can follow us on our social media platforms, and I have few speakers here जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहूंगी। So let me see if I have my speakers here. क्योंकि देखिए, जितनी देर तक आप किसी जीते जागते इंसान से नहीं सुनोगे आपको पता नहीं चलेगा कि लाइक फॉर एग्जांपल एक इंसान क्योंकि मैं समझती हूँ जब तक आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मौजूद ना हो तो आपको थोड़ा सा वो भी यकीन नहीं आता। जैसे हम जिस तरह मैं पुरानी बात करें, पुरानी सोच है हमारी कि लाइक जिस तरह हम पहले बात कर की है मैंने आपसे कि कोई अगर आज से तकरीबन 20 साल पहले कहता ना कि हार्ड कैश के दिए बगैर भी पेमेंट हो जाएगी तो लोग पागल कहते जिन्होंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया। अब आने वाले टाइम में पीपल आर सेइंग कि यू विल ओनली बी एबल टू पे योर मनी थ्रू, नॉट इट विल बी इवन कार्डलेस पेमेंट, और फोन के थ्रू एप्लीकेशंस के अलावा भी पेमेंट्स होंगी। अब अभी इस वक्त दिमाग जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दिस इज गोइंग टू हैपन। जैसे आज से 10 साल पहले वी यूज टू स्टडी कि हमारे सुनने में आता था कि कार्डलेस पेमेंट्स होंगी। हम कहते थे कार्डलेस पेमेंट कैसे हो सकती है, कार्डलेस कार्ड के बगैर कैसे, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के बगैर कैसे पेमेंट हो सकती है, लेकिन आज हो रही है, फोन्स के थ्रू हो रही है। सो इट इज ऑल अबाउट दीज ब्यूटिफुल पीपल जिन्होंने अपनी ट्रेंड को फॉलो की है। दे आर यंगस्टर्स एंड माशाल्लाह वी आर सुपर प्राउड ऑफ देम कि दे वर एबल टू चेंज देयर लाइफ एंड देयर फैमिलीज लाइफ। लेकिन of course I want to ask few questions from new starters as well कि अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर एड ऑन जरूर करना चाहूंगी, एंड वो ये बात है कि हमारे पास इस वक्त अगर पावर ईगल्स की हम बात करें, वी हैव अ डेटाबेस ऑफ मोर देन 3.2 मिलियन पीपल
from Pakistan who are interested in this opportunity. अब जाहिर सी बात है different cities से ताल्लुक है किसी का, आप किस city से ताल्लुक है वो मुझे जरूर बताएं, आपका ताल्लुक किस city से है. Okay, we have of course we have people from all the cities, even worldwide, even हर country से जहां पर भी पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं. 10 countries ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इस वक्त रह रहे हैं. यूएसए, यूके, उसके बाद स्पेन, जर्मनी, इटली, उसके बाद मिडल ईस्टर्न सारी कंट्रीज, यूएई के अंदर. एंड वी हैव अ डेटाबेस ऑफ ऑल पाकिस्तानीज जो इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. और आपके पास ये फायदा है यहाँ पर कि यू जस्ट हैव टू लर्न द स्किल. हम आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे उस स्किल को सीखना है, आपको किस तरह से मास्टरी हासिल करनी है, इस अपॉर्चुनिटी को, इस व्हीकल को चलाना, इस गाड़ी को कैसे चलाना है, वो हमने आपको सिखा देना है. आप पे ये डिपेंड करता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं कि नहीं. ओके, सो आई वांट टू आस्क वन ऑफ माय स्पीकर हियर. Assalamu alaikum. Who is the one who is going to speak? Let me unmute Yusra. Yusra, can you please unmute yourself? Yusra, can you please unmute yourself? Am I audible? Acha, I think she will not be able to unmute herself. I will have to give her the ability to do that. Can you please make Yusra co-host? I think. Okay. Yeah. All Assalamu right. alaikum. वालेकुम अस्सलाम. So good to see you, Yusra. कैसी हैं आप? Thank you. बिल्कुल ठीक, आप बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा युसरा, मैं आपसे दो ही सवाल पूछना चाहूंगी. पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ रहती हैं? दुबई. आप दुबई बेस्ड हैं. ओके, दैट्स ग्रेट. मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपको 50 लीड्स दूं दुबई बेस्ड, आप एवरेज क्या निकलेगी, आप कितने जो है वो सेल्स कन्वर्ट कर सकेंगी या कितनी आप कन्वर्जन्स कर सकेंगी? I believe 10. 10 कर सकेंगी. अच्छा, 10 का मार्जिन अगर हम देखते हैं तो पर पर्सन 1 out of 5. हाउ मच इट इज? 1 out of 5 can be done inshallah. And ओके. if I'm a new starter, तो इसका एवरेज निकलता है 2.5 लाख रुपए in the very first month. Okay, mashallah. Means you can, and you have already sent me your earnings which you have Yeah. already. So मतलब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज व्हाट आई कैन अचीव थ्रू दिस बिजनेस एंड थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी. अच्छा युसरा, कभी सोचा था इससे पहले कि लाइक कोई अर्निंग कर पाऊंगी या कभी कुछ मतलब being a mother and being a person who has a lot of other responsibilities कि ऑनलाइन बैठ के कभी पैसे कमाएंगे? नहीं, ऑनलाइन नहीं सोचा था, फिजिकल का सोचा था कि जॉब मिलेगी या नहीं, बट सेल्फ डाउट्स बहुत थे, मैनेज करना बहुत मुश्किल था. एंड जब अपॉर्चुनिटी मिली और जब प्रेजेंटेशन देखी पूरी, तो पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे थे. आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है. आप घर पे होगे, आप अपने काम कर रहे होगे एंड यू विल बी एबल टू मेक मनी. एंड उस वक्त जब अपना माइंड बनाया और जब बहुत एक्साइटिंगली ज्वाइन करने का सोचा, तो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये थी कि दिस मंथ आई एम गोइंग टू जनरेट 500 दिरहम्स. सिर्फ उसकी बहुत खुशी थी कि वो अपने होंगे, नो मैटर पॉकेट मनी क्या है या घर का खर्च क्या है या मुझे क्या चाहिए, बट सिर्फ वो एक 500 to 1500 जो अपने लिए रखा था ना कि 6 months में 1500 तक पहुंचना है, वो ही बहुत बड़ी बात थी. बट मेरे ख्याल से जब आप मेहनत कर रहे होते हो, जब आप सीख रहे होते हो, जब आप अपने मेंटोर्स को फॉलो कर रहे होते हो, तो 6 months आपको लाखों 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 बनाने में लग जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट मंथ 50,000 है, नेक्स्ट मंथ 60 होगा. नहीं, आप फौरन फौरन लाखों कैसे बनाते हो वो आप सीख जाते हो. एंड आई बिलीव कोई अगर 3 लाख अपना एक छोटा सा मार्जिन रखता है, जो मेरे ख्याल से आजकल जब पाकिस्तान में आप किसी से पूछें कि सैलरी क्या है उस बंदे की जो घर चला रहा है, और वो 1 लाख हो, तो आप थोड़ी देर के लिए सोचते हो कि ये घर कैसे चल रहा है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, पाकिस्तान में 4 लोगों का जो घर होता है उसकी ग्रोसरीज ही 60,000 में आती है.
एंड वी नो अबाउट द बिल्स एंड एवरीथिंग. सो मेरे ख्याल से अगर आप 3 लाख का भी अपना मार्जिन रखते हो तो आपको 3 महीने का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है उस तक पहुंचने में, इफ यू एक्चुअली आर सीरियस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू फॉलो द रूल्स. Okay, that's amazing. Thank you so much, Yusra. It was lovely listening from you. Thank you so much. Best of luck. Okay. Okay, the next person, can you please unmute for me, Larib? And Larib, can you please put your cams on as well? आप अपना कैमरा ऑन कर दें. I can't see you. अस्सलाम वालेकुम मैम दिनेश. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. So good to see you. Let me add spotlight. ओके जी लारिब, आपसे भी एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि आप इस वक्त कहाँ बेस्ड हैं? मैं ओमान में. आप ओमान में बेस्ड हैं. और अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा. अगर आपको मैं इस वक्त आपको यूके की लीड्स प्रोवाइड करूं, तो लेट्स से हम आपको 20 लीड्स प्रोवाइड करते हैं, उन 20 लीड्स में आप कितनी कन्वर्ट कर सकती हैं? मैं 20 की 20 कर लूंगी अगर मुझे मिल गई तो. वाह, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. मतलब ये आपको अपनी अच्छा, इससे पहले आपको कभी ऐसा लगा था कि आपके अंदर ये काबिलियत है, ये स्ट्रेंथ है कि आप ये कर सकती हो इस बिजनेस को नहीं, ज्वाइन? स्टार्ट में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि स्किल्स नहीं थी. जैसे हम्म, जैसे सीखती गई और फिर बस समझ आ गया कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है और उनको मैं किसी भी तरह इस बिजनेस में लाना चाहती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. यानी कि और आप मुझे एक बात बताओ, आपकी टीम में कोई, आपकी टीम में डेफिनेटली मुझे पता है बहुत पोटेंशियल टीम मेंबर्स हैं, और काफी मैसेजेस भी आपकी तरफ से मिलते रहते हैं कि अब ये टीम मेंबर ये बात कह रही है, अब टीम मेंबर ये बात कह रही है. वो खुशी क्या होती है जब आप किसी के मेंटर होते हो और आप हेल्प कर रहे होते हो और आपकी वजह से एक इंसान कुछ बन पा रहा होता है, वो खुशी कैसी होती है? बस मैम दिनेश, कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे अल्फाजों में लोग याद रखेंगे. हर बात पे कुछ ना कुछ दुआ मिलेगी सुनने को. और उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई हैं, वो मेरे बदौलत अर्न करना सीख रहे हैं, तो बस ब्लेसिंग है ये बिजनेस. अल्हम्दुलिल्लाह. और आपके कॉन्फिडेंस को सल्यूट. मुझे ये बताएं कि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप क्या अचीव करना चाहती हैं? अगले 6 महीने में आप क्या ऐसा करेंगी कि हमें आप प्राउड फील कराएं, और ये जो आपकी सुनने वाली आज ऑडियंस है ये इंतजार में रहेगी कि अगले 6 महीने में कहाँ देखेंगे वो आपको, क्या अचीव किया होगा, क्या हासिल किया? अगले अगले 6 महीने में मेरा टारगेट है कि मैं 500 लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनाऊं. इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने साथ दिया और लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझ सके. और टारगेट तो जाहिर है बहुत बड़े हैं. विच इज 1,75,000 दिरहम्स. ठीक है. और अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो अर्निंग पोटेंशियल आपकी बन जाती है तकरीबन एक करोड़ से ऊपर. तो ये आपका गोल है इंशाल्लाह अगले 6 महीने में. इंशाल्लाह. बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. इंशाल्लाह. एंड अल्हम्दुलिल्लाह टू दिस अपॉर्चुनिटी इन अल्लाह सुब्हान ताला कि दिस हैज कम अक्रॉस अस. और हमारा माइंड ओपन था जब हमें ये बताई गई, तो हमने अपने दरवाजे नहीं बंद किए, दिमाग बंद नहीं किए, एंड वी बिकेम पार्ट ऑफ दिस. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. बिल्कुल. थैंक. Okay, the next person, can you please unmute for me, Alishba? I think let me find you on the list. Okay, I can't see you. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I am good. Alishba, I cannot see you. Acha, I think let me find you on the list. Okay, I can't see you. Okay. Okay, now I can see you. How are you, Alishba? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल ठीक. आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. जी अलिशबा, मुझे ये बताएं कि अगर आप इस वक्त किस सिटी में बेस्ड हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान, मुल्तान. मुल्तान में बेस्ड हैं. अच्छा. खैर, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं है कि आप अपनी सिटी से ही ग्रो करो, आप किसी भी सिटी से ग्रो कर सकते हो. आपकी बिगेस्ट टीम किस सिटी से, आपकी सबसे बड़ी जो ऑडियंस या टीम है वो किस सिटी से बिलोंग करती है? ओके मैम, मैं इस टाइम 11 कंट्रीज में काम कर रही. पाकिस्तान, सऊदीया, कुवैत, ओमान एंड कतर. यूएसए की 2 स्टेट
यूएस की 2 स्टेट, एक कैलिफोर्निया एंड दूसरी आप जो वो थी मैम मुजमा की स्टेट, वहां से माशाल्लाह वो सुपरवाइजर है। जर्मनी And एंड मलेशिया, काफी सारी very कंट्रीज में काम कर रही हूँ। पाकिस्तान में मैम मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी टीम लाहौर एंड कराची से एक पोटेंशियल टीम है, और कराची से तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे ये बताइएगा कि अगले 6 महीने में आपने क्या गोल बना के रखा हुआ है अपना बिजनेस के लिए? ओके मैम, सबसे पहला गोल है जो आपने हमें टारगेट दिया हुआ है, दुबई ट्रिप एंड थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करने का। फर्स्ट फोकस तो उस पर है कि क्राइटेरिया मीट करना है एंड उसको आपकी साइड से क्वालिफाई करना है। और सेकंड गोल ये है कि मैम इंशाल्लाह 50 lakhs का पे आउट बनाना है, जो कि गोल है, टारगेट है, डू एंड डाई, वो करना ही करना है। और आपकी एज क्या है लिशबा? मैम अभी मैं 15 जनवरी को 18 की हुई हूँ। मैंने 16.5 में अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस स्टार्ट किया था एंड 17 साल की जब मैं हुई थी फिर लास्ट जैन में, और उसके बाद मैं मैनेजर बन गई थी। एंड मैम उसके अलावा 10th जैन को हमारा लाहौर सक्सेस डे था, और लाहौर सक्सेस डे पे मेरे लिए टॉप रिक्रूटर थी, ये मुझे पावर ईगल्स की साइड से, आपकी साइड से मिला था। तब मुझे बिजनेस को ज्वाइन किया मैं जस्ट 7 मंथ हुए थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कभी सोचा था कि आप टॉप रिक्रूटर बन सकती हैं? लाइक एज अ स्टूडेंट, एज अ यंगस्टर, स्कूल में क्या इमेज थी, क्या था जहन में उस वक्त, क्या मतलब? क्योंकि आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू कि इस बिजनेस से क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है? बिल्कुल मैम, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं फर्स्ट क्लास से लेके मैट्रिक तक टोटली गवर्नमेंट सेक्टर्स में पढ़ी हूँ। मैंने किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से नहीं, टोटली गवर्नमेंट में। वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉपर स्टूडेंट थी, मेरी स्कॉलरशिप्स मिलती रहती थी। और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली मुझे पावर ईगल्स का या किसी भी चीज का नहीं पता था। मैंने एक ऑनलाइन सेशन अटेंड किया था, वो था नेटवर्किंग के बारे में। तब मुझे समझ आ गई थी कि लाइफ में करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करनी है एंड नेटवर्किंग करनी है। फिर मैं उसके लिए ना बहुत काम किए, रीसेलिंग का काम किया, बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस ज्वाइन किए, काम ज्वाइन किए, लेकिन कहीं पर भी कुछ चीज नहीं मिल पाई। लेकिन जैसे ही फिर आपका पता चला, आपके सिस्टम को ज्वाइन किया, समझ आ गई कि ये एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है और यहाँ से मैं अपनी उस चीज को क्वालिफाई कर सकती हूँ, नेटवर्किंग को। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत की, टॉप रिक्रूटर बन गई, सुपरवाइजर बन गई, मैनेजर बन गई, दुबई आ गई, सारा कुछ किया। फिर बस टारगेट था नेटवर्किंग करने का, वो भी इसलिए मैम देखिए अब हम कहीं पर भी जाते हैं ना, वो टीम जो हमें सपोर्ट करती है, आजकल कोई अपना भी नहीं पहचानता आपको नहीं एरिया में, लेकिन हमारी कोई टीम होती है वो हमें सपोर्ट करती है, ऐसे आकर मिलते हैं और इस तरह से हर जगह आगे से आगे। सो इस वजह से नेटवर्किंग का माइंडसेट था, जैसी अपॉर्चुनिटी मिली तो नॉन। ठीक है जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं थैंक यू। प्राउड हूँ आप सबसे, ईच वन ऑफ यू, यू आर माई प्राइड। और आई नो दैट कि आप लोग सिर्फ अकेले मिलियनेयर्स नहीं बन रहे, आप इंशाल्लाह करीम पाकिस्तान के हर उस बच्चे को अपने साथ लेकर ग्रो करवाओगे, हर उस हाउसवाइफ को, चाहे वो लड़का है तो चाहे वो लड़की है, स्टूडेंट, आप इंशाल्लाह उनकी ग्रोथ में हेल्प करोगे, बिकॉज यू आर द पायोनियर्स पीपल। जो उन्होंने द पायनियर्स जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, समझा, और इंशाल्लाह जो आज भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह करीम, दे आर गोइंग टू बी वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके गाइस, सो आखिर में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि दे आर वेरी लिमिटेड पीपल। आई नो इस वक्त मैं यूट्यूब पे पहले एक दफा चेक कर लूं कि कितने हमें लोग जो हैं वो इस वक्त सुन रहे हैं। लेट मी हैव अ लुक, बिकॉज मैंने उस वक्त अपना चैनल यहाँ से अपनी स्क्रीन बंद कर दी थी। लेट मी सी, 1177 आई कैन सी ऑन यूट्यूब। अब 1177 में से लेट्स सी कि हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू बी चोजन। आई थिंक हार्डली 50 या 60 लोग चूज होंगे, क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है। ओनली 50 to 60 वी कैन, क्योंकि हमारी भी एक एवरेज, जाहिर सी बात है, एक रेशियो निकलती है एज अ टीचर, एज अ लीडर, एज अ कोच, जहां हम आपको काम सिखा सकते हैं। You just have 24 hours to have this slot in your hand, and I mean it, and I mean it when I say I mean it, क्योंकि यहाँ पर आपको हजारों लोग नजर आ रहे हैं इस वक्त सुनते हुए, समझते हुए, और चांस बहुत कम लोगों को मिलने वाला है। तो अपनी इस स्लॉट को जाने नहीं दें। You are now joining the biggest business, the biggest project in Pakistan ever. And I tell you this, and I tell you this कि इंशाल्लाह करीम ये बात जो मैंने बोली है, it will be proven in the next 6 months, इंशाल्लाह करीम, बिस्मिल्लाह। So let's get started and let's see वो कौन खुश नसीब few members हैं जो इस चीज के लिए जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। Best of luck to each one of you. अल्लाह हाफिज।